So in this particular class, we will discuss about the most important part of your cardiology or cardiovascular system, that is congestive heart failure. But congestive heart failure, the term itself signifies, ये जो टर्म है ये अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि हार्ट फेलियर हुआ है और उसमें एक टर्म जुड़ा गया है कंजेस्टिव. कंजेस्टिव मतलब कंजेशन. ओके, कंजेशन in a means when there are maximum amount of blood which are blocked inside the heart, which are not able to come out, which are not able to come out. Okay, हार्ट में ब्लड फिल होता है और फिर वो बाहर आता है, एंट्री होता है, एग्जिट होता है. जब एंट्री होने के बाद वो सही से बाहर ना आ सके और वहीं पे जमा रह जाए, वहाँ पे कंजेशन शुरू होगा, सिकुड़न शुरू होगा. उसी से ये नामकरण हुआ है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. डिटेल में आगे समझेंगे कि होता क्या है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए हमको कुछ टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है जो आपके सामने है. सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड in your angina part, in your cardiovascular system, the amount of blood pumped by the ventricles per beat. एक बीट में, ठीक है, कितने अमाउंट में ब्लड जो है हार्ट के बाहर आता है, हार्ट के बाहर, हार्ट से बाहर आता है. एंड द एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70, 60 to 80 और 70 ml. ओके, 70 ml. So this is the stroke volume. Okay, now next term is your cardiac output. Next term is your cardiac output, and cardiac output is nothing but the amount of blood pumped, the amount of blood pumped by the heart in 1 minute. In case of stroke volume, in 1 beat. In case of cardiac output, in 1 minute. If stroke volume into heart rate is equal to cardiac output. अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को हम हार्ट रेट के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको कार्डियक आउटपुट पता चल जाएगा. व्हिच मीन्स सपोज दिस इज 70 ml एंड दिस इज 70 बीट्स पर मिनट, देन 49 what 100, 4900, approximately 5 liter is your cardiac output. Approximately 5 liter is your cardiac output. Okay, so here it is, cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. Is that clear? Yes or no? Stroke volume per beat, cardiac output per minute. Moving on. Okay, moving on. Another term, that is inotropic effect. Inotropic effect. What do you mean by inotropic effect? Write down the effect of force of contraction of heart. Force of contraction of heart is called inotropic effect. Force of contraction of heart is called inotropic effect. Force of contraction of heart is called inotropic effect, which means हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिस तेजी से, जिस फोर्स से, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं इनोट्रोपिक इफेक्ट. ठीक है, लुक एट हियर, द हार्ट इज पंपिंग जस्ट लाइक दिस, 1 2 3 4. नाउ इट विल increase the force. The force is increased. Now the force is decreased. Okay, if the force is increased, it is called positive inotropic effect, and opposite, if the force is decreased, it is called negative inotropic effect. It's medical term, you have to remember this. मेडिकल भाषा में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं इनोट्रोपिक इफेक्ट. अगर वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए उसको बोला जाएगा पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, एंड ऑपोजिट, दैट इज वाइस वर्सा, अगर डिक्रीज हो जाए तो उसको बोलेंगे नेगेटिव. इज इट क्लियर? सो दिस इज द थिंग. ओके, द थर्ड टर्म. देन नेक्स्ट, व्हाट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. अभी हम आएंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है. ओके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर means when the heart is unable to pump adequate amount of blood to the metabolic needs. Adequate amount of blood to the metabolic needs. Now, suppose this is
the heart, and here are the ventricles, and this is your auricles. Here are valves. 4 chambers are there, and we know that these ventricles are important to supply blood to the body. Yes or no? ऑरिकल में ब्लड एंट्री होता है ना, लेकिन वेंट्रिकल क्या करता है, बॉडी को भेजता है, हार्ट से बाहर भेजता है. ठीक है. अगर ये जो ब्लड इसके अंदर है, ये जो ब्लड इसके अंदर है, where in the auricle and then to ventricles, then to ventricles. अगर ये वेंट्रिकल्स अच्छे से स्क्वीज नहीं करेगा, अगर ये वेंट्रिकल जो मास है, जो मायोकार्डियम है, जो मसल है, अगर ये सही से स्क्वीज नहीं करेगा, तो इसके अंदर जो ब्लड है वो बाहर नहीं जाएगा, सही से बाहर नहीं जाएगा. बिकॉज हार्ट इज नथिंग बट व्हाट, बलून. हार्ट क्या है? सो particularly heart is like a balloon, and inside the balloon there is water or there is blood. When the balloon will be squeezed, the water or the blood will come out. Yes or no? But if the balloon is not able to squeeze properly, if the balloon is not able to contract properly, then the blood will remain inside. Same mechanism. Same mechanism. In case of congestive heart failure, the heart myocardium is not able to pump or contract properly. That is why अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ये जो ब्लड है ये उसी के अंदर जमा होकर रहेंगे, वो अपने लोकेशन में यानी कि बॉडी में पहुंच नहीं पाएंगे. इज दैट क्लियर? तो एक कंडीशन रहेगा यहाँ पे जो ब्लड जमा होकर रहेगा. ठीक है, यहाँ पे ब्लड जमा होकर रहेगा. अब इसके ऊपर क्या है, ये कहाँ भेजता है, ये भेजता है और ये भेजता है. कॉन्सेप्ट जानी चाहता हो? नहीं बुझी नहीं पा रहा. सर्कुलेशन जानी चाहिए नहीं. द राइट वेंट्रिकल सेंड्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द. इफ द हार्ट इज नॉट एबल टू पंप, देन हियर देयर विल बी ब्लड एक्यूमुलेटेड, जमा होगा. और साथ ही साथ अगर ये पंप नहीं करेगा सही से, तो लंग्स में भी ब्लड जमा होगा ना, बॉडी में भी ब्लड जमा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा. इसीलिए द पेशेंट विथ योर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, उनके लंग्स में ब्लड मास जमा होता है, और इससे क्या होगा, इससे लंग्स में ब्लड प्रेशर जो है बढ़ेगा. इससे जो बॉडी में, खास करके पैरों में इडिमा, पैर फूलने लगेंगे पूरा. और किस तरह का इडिमा, आप अगर उसको टच करोगे तो वहां पे खड्डे होंगे. ओके, दैट इज इडिमा, एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड. इडिमा मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड. अभी आप अगर मसल को टच करोगे, उसको प्रेस करोगे, वो फिर से नॉर्मल हो रहा है कि खड्डा हो रहा है वहां पे. लेकिन अगर इडिमा है, अगर फ्लूइड जमा हुआ है, तो उसको अगर प्रेस करोगे तो वहां पे खड्डा बनेगा. इज दैट क्लियर? और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज सी, कुएं में पानी है, और कुएं से पानी को हम निकाल करके खेतों में डाल रहे हैं. कहाँ पे? और फिर खेतों से पानी लेकर के हम कुएं में डाल रहे हैं. एक सर्किल चल रहा है, कुआं से खेत, खेत से कुआं, एक सर्किल चल रहा है. और कौन चला रहा है? पंप. पंप अगर खराब हो जाए तो कुएं में पानी जमा रहेगा, निकलेगा नहीं. उसी तरह से खेतों से पानी रिटर्न नहीं आएगा. तो ये पूरा का पूरा शरीर जो है, मान लीजिए खेत है, और हार्ट जो है उसको चला रहा है, पूरा शरीर को सर्कुलेट कर रहा है. नाउ दिस पर्टिकुलर हार्ट इज नॉट एबल टू पंप प्रॉपर्ली. दिस मायोकार्डियम सही से काम नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है. तो क्या होगा? लंग्स में ब्लड जमा होगा, बॉडी में ब्लड जमा होगा, वेंट्रिकल में ब्लड जमा होगा. एंड दिस कॉजेस, एक छोटे से एरिया में जब पूरा पैक रहेगा, उसको बोलते हैं कंजेशन. उसको बोलते हैं कंजेशन. और उसी से इसका नामकरण हुआ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, because heart is not able to pump. Congestion because the blood is accumulated inside the ventricle and it is congested. Congested मतलब वहाँ पे पूरा जमा हुआ है. Is that clear? अब ये फ्री होगा तभी तो नए ब्लड आएंगे ना. अब फ्री ही नहीं हो रहा है. धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हार्ट है इसका साइज जैसे बैलून में पानी भर के रख दोगे, तो उसके बाद पानी निकालने के बाद स्ट्रेच हो जाता है ना, हार्ट का साइज भी इस तरह से स्ट्रेच होगा, जो आपको एक्सरे में क्लियरली विजिबल होगा कि ये जो पर्सन है इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है. कैसे? ये वेंट्रिकल का नॉर्मल साइज है, ये स्ट्रेच होगा. क्यों स्ट्रेच हो रहा है? क्योंकि हर वक्त यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, जितना होना चाहिए
ब्लड का काम है अंदर आए फिर बाहर चला जाए, अंदर आए फिर बाहर चला जाए, नहीं जा पा रहे। अंडरस्टूड? सो दिस इज द बेसिक थिंग। डिटेल में आगे और पढ़ेंगे और अंदर घुसेंगे, ठीक है। So what is congestive heart failure? When the heart is unable to pump, हार्ट जो है पंप नहीं कर पा रहा है एडिक्वेट अमाउंट, जितना ब्लड बाहर निकलना चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी के लिए, बॉडी को ब्लड चाहिए, हर एक काम के लिए ब्लड चाहिए, तो उसके लिए जितना ब्लड चाहिए हार्ट उसको बाहर नहीं देता, ठीक है। तो हार्ट में भी ब्लड जमा होकर रह रहा है, लंग्स में भी जमा होकर रह रहा है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा होकर रह रहा है। और खास करके बॉडी में कहाँ जमा होगा पता है? खास करके बॉडी में कहाँ जमा होगा पता है? कहाँ? बॉडी में अगर हार्ट सही से काम नहीं करेगा तो बॉडी में एक तो लंग्स में जमा होगा, ठीक है, दूसरा बॉडी के निचले हिस्से से, बिकॉज ग्रेविटी इज देयर, ग्रेविटी इज देयर, तो बॉडी के निचले हिस्सों में ज्यादा ब्लड जमा होगा। इसीलिए इडिमा जो है हमेशा इसी एरिया में दिखाई देता है। शरीर के इडिमा जो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है इसी एरिया में दिखाई देगा। आप पूछोगे सर वहां पे क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, वहां पे ज्यादा फोर्स चाहिए ऊपर लाने के लिए, हाँ कि ना? ओके। CHF describes the accumulation of blood and fluid in organs, tissues from impaired circulation. ऑर्गन और टिश्यू में जमा होकर रहेगा, जैसे कि मैंने अभी अभी समझाया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, लुक एट हियर, you can see the heart here, a pumping heart, where you can see the auricles, the blue color is your deoxygenated, red color is your oxygenated, and the auricle is contracting, sending both type of bloods to the ventricle downward, and the ventricles left and right, they are moving upward, contracting and moving the blood upward, okay, downward upward, इस तरह से उसका फंक्शन हो रहा है। यस और नो? बुझिए उजे पिले। अगर इसमें स्लो हो जाए, ये अगर पंप सही से ना करे, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, लुक एट हियर, ये कहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मसल को ध्यान दीजिए, ये रिलैक्स हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ तक, देख पा रहे हो? देखो मसल रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ये सुन लो। अगर ये यहाँ से यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अब आधे तक हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा होना चाहिए, अब आधा हो रहा है, पूरा हुआ आधा, तो जब आधा होगा या फिर कम होगा, नॉर्मल नहीं होगा, आधा होगा, तो इसके अंदर जो ब्लड है सही से निकलेंगे, कहाँ जमा होंगे? फिर उसी के अंदर। एंड दिस इज व्हाई, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो बेसिकली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हार्ट का जो कंट्रैक्शन कैपेसिटी है वो रिड्यूस होता है। क्यों होता है वो आगे आएगा आपका, ओके। लुक एट हियर, ऑरिकल, वेंट्रिकल, इस तरह से ये एक ECG मैंने आपको यहाँ पे शो करने का अनदर टर्म, प्रीलोड। अप टू नाउ any doubt regarding the congestion, any doubt regarding the lungs accumulation? lungs में accumulation कैसे होगा, क्यों होगा? क्लियर है? बॉडी के दूसरे हिस्से में, लोअर पार्ट में ब्लड जमा होगा, ये भी क्यों होगा? क्लियर हो गया? हार्ट के वेंट्रिकल में जमा होकर रहेगा, उसको हम कंजेशन बोलेंगे, क्लियर है? ओके। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट। मूविंग ऑन, अनदर टर्म, प्रीलोड। प्रीलोड, what do you mean by preload? Preload is nothing but the amount of blood presented to the ventricles just before systole, just before systole. Look at here, the amount of blood presented to the ventricle just before systole. Systole means contraction, okay, systole contraction। उससे पहले क्या हुआ है? रिलैक्सेशन। उससे पहले क्या हुआ है? फिर डायस्टोल। मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि एक साइकिल है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, एक साइकिल से चल रहा है। इसने कहा कि सिस्टोल से पहले, सिस्टोल से पहले, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन से पहले जितना ब्लड वेंट्रिकल में है उसको बोलते हैं प्रीलोड। कॉन्ट्रैक्शन से पहले जितना ब्लड वेंट्रिकल में है उसको बोलते हैं प्रीलोड। इज देयर एनी sponge-like structure? Is there any sponge-like structure? I can show you what is preload. No? No. Yes. Fill some water. पूरा पैक करो, उठाओ चलो। Suppose this is the ventricle. Okay? This is the ventricle and it is blood inside. Okay? Now what is preload? Definition, by definition, that is the amount of blood presented to the ventricles just before systole. Okay? Now look at here. Beside here, look at here,
Suppose this is the ventricle which is filled with blood. This is now diastole or relaxed. Now systole, diastole, systole, diastole, systole, diastole, systole, diastole. मैंने यहाँ पे एक्चुअली इसको पूरा खाली करने, एक हार्ट में वेंट्रिकल में ये पूरा खाली होगा और जितना बच जाएगा, जितना रिटर्न आ गया, देखो आप ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फोकस करो और फिर रिटर्न आएगा, यहाँ से थोड़ा सा रिटर्न आ रहा है. सिस्टोल होने के बाद जब डायस्टोल में वहां पे कुछ रह रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रीलोड. प्रीलोड मतलब कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले जितना ब्लड है. राइट डाउन द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंटेड टू द वेंट्रिकल्स जस्ट बिफोर सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट बिफोर सिस्टोल. देन राइट डाउन आफ्टर लोड the amount of resistance to the ejection, the amount of resistance TPR, कंपेयर करिए, थोड़ा याद करिए, पढ़े हैं. the amount of resistance to the ejection of blood from the ventricles. Okay, this resistance will be caused by, दो वर्ड लिख लीजिए, टेंशन इन एरोटा एंड सिस्टमिक वेसल्स. टेंशन इन एरोटा एंड सिस्टमिक वेसल्स. सिस्टमिक वेसल्स मीन्स ब्लड वेसल्स, सिस्टमिक वेसल्स मीन ब्लड वेसल्स. ये रेजिस्टेंस किसके द्वारा हो रहा है? एरोटा में जो प्रेशर है उसके द्वारा. टेंशन मीन्स प्रेशर एंड दैट इज सिस्टमिक और ब्लड vessels. Can I move on to the next slide? Okay, look at here. This diagram will help you to understand. Look at here. Preload, afterload. This is very important to understand. Preload, जैसे कि definition में बताया गया, the amount of blood presented before contraction. Before contraction. तो ये जो ventricle है ये contract हो गया. Contract होने के बाद blood बाहर आ गए. Contract होने के बाद blood बाहर आ गए. फिर ये रिलैक्स तो होगा ना, रिलैक्स होगा. जब ये रिलैक्स होगा तो यहाँ पे जो वैक्यूम है, क्या ये ब्लड को पीछे नहीं खींचेगा? अगर यहाँ से ये बाहर जा रहा है और फिर ये रिलैक्स होगा तो खाली जगह बनेगा, वैक्यूम बनेगा, तो कुछ ब्लड पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जो ब्लड पीछे आएंगे ड्यूरिंग रिलैक्सेशन वो फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे. ये सुन लो, एक्चुअली इसका एनिमेशन और सही होता है नहीं. आई हैव टू ड्रॉ दिस. ओके, ड्रॉ विथ मी. दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग दवाई पढ़ोगे लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रॉ डायग्राम ऑफ हार्ट. रफली बनाओ, डिटेल में नहीं. 4 वेंट्रिकल शो करवाओ और यहाँ पे बस एरोटा शो करो, एरोटा, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी. ओके ओके. नाउ this blood is filled, this heart is filled with blood. Okay, and this is, अगर ये filled है तो अभी ये कौन से स्टेज में है? fill है मतलब कौन से स्टेज में है? लॉजिक लगाओ. बैलून फुली गिरी છે તાર મને કેવ સ્ટેજ રહ્યો છે? સિસ્ટોલ की डायस्टोल? रिलैक्स है. now the heart is relaxed condition. now when it is relaxed, the superior and inferior वेना cava जो ऑरिकल है उसने डाल दिया है अंदर. समझो इसको, ठीक है. Now the heart is, this ventricle is squeezed. This ventricle is squeezed stage. Okay. Now suppose this is, let's suppose this is 70 ml. The whole ventricle, this plus this 70 ml. And here it comes out 60 ml. बाकी इसमें कितना बचा है? Okay. Now जब ये रिलैक्स होगा, अभी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर कहाँ जाएगा ये? डायस्टोल. और जब ये डायस्टोल होगा, ये रिलैक्स होगा वेंट्रिकल, तो इसमें कुछ ब्लड यहाँ से रिटर्न होंगे कि नहीं? तो इसमें आ जाएंगे 10 है, मान लीजिए 15 ml, दोनों मिला करके. ठीक है. अभी डेफिनेशन में जाइए. द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंटेड टू द वेंट्रिकल्स बिफोर सिस्टोल. तो अभी डायस्टोल है, इसके बाद क्या होगा? तो बिफोर सिस्टोल. और इसी फेज में जितना ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, दैट इज कॉल्ड प्रीलोड. दैट इज कॉल्ड प्रीलोड. इज दैट क्लियर? ये बुझी हला कि बुझी नहीं हला? दिस डायग्राम सिग्निफाइज दिस. देखो, प्रीलोड. ओके, जब रिटर्न आ रहा है, मैंने भी यही किया है ना, रिटर्न आया हुआ है, दैट इज प्रीलोड. नाउ आफ्टर लोड डेफिनेशन लिखे हो. आफ्टर लोड डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस to the ejection of blood from the ventricles
मतलब आफ्टर लोड का मतलब है जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल रहा है तो कितना रेजिस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस किसके द्वारा हो रहा है? आर्टरी और एरोटा टेंशन लिखे हो, प्रेशर, और साथ ही साथ ब्लड वेसल में जो प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम जितना प्रेशर डालेंगे वो भी एक टेंशन क्रिएट करेगा, एक लोड क्रिएट करेगा, एक प्रेशर बिल्ड करेगा, इसको बोलते हैं। इज दैट क्लियर? आज से पहले शायद आप लोग ये सोच रहे थे कि हार्ट के अंदर जाएगा फिर सारे के सारे निकल आएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप सिंपल सा बोतल रखो ना, ये बोतल को अगर स्क्वीज भी करूंगा तो कुछ पानी यहाँ तक जाएंगे, पास होंगे, और जहां से यहाँ तक जो रहेंगे ये पास होंगे पूरा। यहाँ तक जब पहुंचेंगे, मैं इसको अगर रिलैक्स कर दूं तो यहाँ से फिर क्या होगा? आएगा कि नहीं रिटर्न? तो फिर यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं होगा क्या? सिंपल फिजिक्स है। हार्ट भी एक पंप है, एक बलून है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिर रिलैक्स होगा, कुछ तो रिटर्न आएंगे ना, दैट इज द थिंग। और वो जो रिटर्न आएंगे वो यहाँ पे अगर लोड ज्यादा होगा तो और ज्यादा रिटर्न आएंगे। अगर यहाँ पे लोड ज्यादा होगा, दिस इज एरोटा, यहाँ इसको अगर हम स्क्वीज कर दे और इसको बाहर करें फिर रिलैक्स करें, तो अभी जितने तेजी से रिटर्न आ रहा था वो रिटर्न बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड आफ्टर लोड। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्री लोड एंड आफ्टर लोड। ओके, नाउ इन दोनों को पढ़ने का कारण क्या है, मैं इतना ही रखूंगा, इसको दो पार्ट में हम कवर करेंगे, लेकिन पहले इसको मैं और क्लियर करना चाहूंगा। इन दोनों को पढ़ने का कारण क्या है, क्यों इतना हम स्ट्रेस दे रहे हैं, क्यों इतना हम स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, इतना कार्डियक आउटपुट पढ़ रहे हैं, प्री लोड पढ़ रहे हैं, आफ्टर लोड पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर ये आफ्टर लोड बढ़ेगा मतलब तेजी से रिटर्न आएंगे ब्लड, और हार्ट को उसको निकालने के लिए ज्यादा पंप करना पड़ेगा कि नहीं? अगर मैं यहाँ इसको पंप कर रहा हूँ, ये हार्ट है, ये स्लो पंप हो रहा है और ये मूव नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, एरोटा प्रेशर ज्यादा है, तो इसको और ज्यादा स्क्वीज करना पड़ेगा, हार्ट फंक्शन बढ़ेगा, हाँ कि ना? उसी चीज के लिए यू कैन सी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? इंक्रीज इन हार्ट के ऊपर लोड बुझी हला राजा कैंसी जगह किसी प्रॉब्लम वाला पिले। समझ में आ रहा है आप सबको? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आएंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। डू यू हैव एनी रबर बैंड? एनीबडी हैज एनी रबर बैंड? नो। ओके, राइट डाउन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ओके, इन दैट राइट डाउन द एबिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम, the ability of the myocardium to stretch and reverse back to its original size. The myocardium has the ability. इसका ओरिजिनल साइज क्या है? दिस वन इज द ओरिजिनल साइज। इसको मैं स्ट्रेच करूंगा तो फिर ओरिजिनल साइज, फिर स्ट्रेच, ओरिजिनल साइज। द हार्ट मसल हैज द कैपेसिटी टू स्ट्रेच एंड देन comes back to the original size. Stretch, contract, stretch, contract. This is called contractility. The ability of the myocardium to stretch and then comes back to original size is called contractive. Why actually important? Because अगर ये contractility सही से नहीं होगा, अगर ये stretch हो रहा है और आधे में रुक जा रहा है, ओरिजिनल पोजीशन नहीं आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, आधे में रुक जा रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, आधे में रुक जा रहा है, तो इसके अंदर हार्ट मसल स्ट्रेच होगा, आधे में रुक जाएगा, तो क्या ब्लड बाहर निकलेंगे? व्हिच अमाउंट्स टू कंजेस्टिव। ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रीडिंग करो। हेलो, हाँ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट, दैट इज हार्ट फेलियर। ओके, राइट डाउन हार्ट फेलियर इज द कंडीशन, हार्ट फेलियर is the condition of inability of the heart to pump sufficient blood to meet the need of the tissue for oxygen and nutrients. बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, किसके माध्यम से मिलेगा? ब्लड के माध्यम से। ब्लड अपने आप तो आगे बढ़ेगा नहीं, उसको पंप किया जाएगा। पंप कौन करेगा? हार्ट करेगा। हार्ट जैसे पंप करेगा उसी तरह से बॉडी से कलेक्ट भी करेगा,
एक तरफ से भेजेगा, दूसरे तरफ से कलेक्ट करेगा। अगर हार्ट में दिक्कत हो, अगर वो पंप सही से नहीं कर पाए, वहां के उसको बोला जाएगा हार्ट फेलियर। हार्ट failure. Okay, just look at the schematic diagram. I had already told you. Okay, the heart. Don't look at the writing. Just look at the oral image. The heart sends blood to different organs and also receives from the body. ये लंग्स को भेजता है, लिवर को भेजता है, किडनी को भेजता है। किडनी को भेजने के बाद वो फिर से किस में कन्वर्ट होता है? यूरिन में। लंग्स को भेजता है, वहाँ पे प्यूरिफाई होता है। अलग अलग जगह पर उसका काम है। लेकिन ये व्हाट डज इट से, ये जो उसका पूरे डायग्राम में महत्व तो ये है कि हार्ट पंप करेगा, अगर पंप नहीं कर पाएगा तो जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर जमा होकर रहेगा और उसका जो नॉर्मल शेप है वो वेंट्रिकल जो है एक्सपांड होगा। वेंट्रिकल जो है एक्सपांड होगा। राइट हियर, लुक एट हियर। इफ दिस इज नॉट द ओरिजिनल साइज, आप लोग ये रबर बैंड देखे होंगे, ये से छोटा होता है, लेकिन ये अभी ओरिजिनल साइज में नहीं जा रहा है, वो एक एक्सपांड होके लूज हो गया है पूरा। ये क्यों लूज हुआ है? बिकॉज इट वॉज स्ट्रेच्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, इसको स्ट्रेच किया गया है। उसी तरह हार्ट जो है एक्सपांड करेगा और फिर रिलैक्स करेगा, लेकिन इसके अंदर अगर ब्लड फील्ड है तो एक्सपांड करके रहेगा, और क्योंकि ये एक्सपांड करके रहेगा, ये जैसे खींच पूरा एक रिलैक्स हो गया, स्ट्रेच हो गया है, उसी तरह से ये मसल भी स्ट्रेच हो जाएगा। द शेप ऑफ दिस हार्ट इज कॉल्ड बूट शेप हार्ट। इसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं बूट शेप हार्ट। जस्ट लाइक बूट, द हार्ट इज जस्ट लाइक बूट। जब एक्सरे करेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। हार्ट एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, ये वेंट्रिकल, ये ऑरिकल, और ये वेंट्रिकल जो है एक्सपांड करेगा। आप देख सकते हो। सो मेडिकल भाषा में इसको बोला जाता है बूट शेप हार्ट। एक्सरे में पता चल जाता है, एक्सरे में आप देख सकते हो इस शेप, ठीक है, और उसमें क्लियरली आपको पता चल जाएगा इट इज व्हाई, बिकॉज ऑफ बीमारी क्या है। अगर ये हुआ तो बीमारी क्या है? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसको मैं दूसरे हिस्से में लेके जाऊंगा क्योंकि एक ही क्लास में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपका काम अभी क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके मेडिकेशंस और कुछ और फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका अभी काम क्या रहेगा कि आज का जो क्लास है उसको इफेक्टिवली मेमोराइज करें, उसको समझे, क्योंकि आज अगर नहीं समझोगे, आज का क्लास अगर बहुत जाम हो जाएगा, बहुत कंजेशन हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में दिक्कत होगा। ओके, आप